और इससे पहले वाली भी जो वीडियो है वो मैंने शेयर कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाकर उसको वहाँ चेक कर सकते हो। फाइन। सो द वर्ड जामदानी विच वी स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास itself. The word Jamdani is believed to be a Persian origin word, which is Jam means flower and Dani means flower pot, a vase, a vase, whatever you call. तो जामदानी इज़ बेसिकली नोन एज अ फ्लावर पॉट। तो इसीलिए जितने भी आपको मोटिव्स देखने को मिलेंगे जनरली दे विल बी फ्लावर्स इन द मेकिंग ऑफ जामदानी। Then we did that Jamdani is a supplementary web technique of weaving where the artistic motifs are produced by a non-structural weft. So basically this was already discussed. So उसमें क्या करते हैं that they use extra weft thread. So that is only known as the supplementary thread used. That is what we do in Jamdani also, in Baluchar also. Baluchari also we did the same. So we did up the history also. I think background also was done, the history origin कहाँ से हुआ है और इसका गुप्ता पीरियड में। एंड येस, सो इट वाज रिटन दैट गुप्ता पीरियड में भी इसका ओरिजिन है, उसमें भी यूज़ होता था। फिर उसके बाद इन मुगल एरा ऑल्सो विथ सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस मतलब थोड़ी बहुत चीज़ों में इधर उधर करके वो गुप्ताज पीरियड में भी यूज़ या बनती थी जामनानी। Fine. The next is that it's written the finest varieties of muslin fabric were produced during this period with a fabulous floral and figured motifs. This was the golden age of Dhakai muslin when the skill of weaving rose to an art par excellence. With the decline of the Mughal dynasty and the subsequent British conquest of India, the trade continued to flourish for a while and enormous quantities of Jamdani muslin were exported to Europe. So we did all of this during the Britishers also, British time also, the Jamdani was there, but slowly and gradually it collapsed. Collapse means khatam hota gaya dheere dheere. Method of construction. This was also, I think I have told you this also, that the traditional जामदानी weaving जो होती है वो basically pit loom पर ही की जाती है. So pit loom is something गड्ढा सा बना होता है जिसमें and they put their feet and that way the construction is done. Then this is something similar. और हाँ, ये भी हमने actually we did complete the जामदानी, हमने पूरी जामदानी complete कर ली थी I guess. Yes, ma'am. So it's fine if let's revise it back again, and then I'll share you the another topic and then we'll study that one. So basically इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा वेब से एक सुआ सा होता है उनके पास, सुई या नीडल कह लो, जो बनी होती है हॉर्न से, हॉर्न्स बुफेलो को हॉर्न से, सींगे से बनी होती है या मेटल से बनी होती है और उसका यूज़ करके इस तरीके से वो डिफरेंट मोटिव्स जनरेट करते हैं। और जहाँ जहाँ मोटिव होता है इट बिकम्स ओपेक एंड रेस्ट ऑफ द फैब्रिक रिमेन्स ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मीन्स थोड़ा थोड़ा पारदर्शी दिखाई देता है, जैसे ये लास्ट वाली पिक्चर थी ये वाली, इसमें ये पारदर्शी सा दिख रहा है, लेकिन देर आर जहाँ पर आपको मोटिव दिख रहे हैं वो एकदम ओपेक हो गया है। तो दिस वॉज द टेक्निक दैट वी डिड लास्ट टाइम ओनली। फिर उसके बाद दिस वॉज लेफ्ट, द टाइप्स ऑफ जामदानीज वर लेफ्ट। सो टाइप्स ऑफ जामदानी में नंबर 1 इज़ योर ढाकाई जामदानी। सो ढाकाई जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ढाका, ढाका इज़ इन दैट बांग्लादेश, सो वहाँ से ही इसका ओरिजिन हुआ है। लेट्स सी क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। So the Dhakai Jamdani sarees are distinct from the other varieties of its very fine texture, by its very fine texture resembling muslin and the elaborate and ornate workmanship. So basically they are telling that it is डन इन मसलिन। तो जो फैब्रिक यूज़ हो रहा है इसमें मसलिन है, बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी का मसलिन यूज़ होता है और बहुत ही फ़ाइन एम्ब्रॉयडरी की जाती है, विच मीन्स छोटे छोटे बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है, बारीकियों में मोटिव्स को ड्रॉ करा जाता है। These sarees have multicolored linear and floral motifs all over the body and border and have an exclusively
डिज़ाइन एलैबोरेट पल्लू। सो बेसिकली इसमें बोल रहे हैं इसमें मल्टी कलर लीनियर मीन स्ट्रेट लाइंस में, स्ट्रेट लाइंस वर्टिकल हो सकती हैं या हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, उसमें लाइनों का यूज़ होता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि उनकी जो पल्लू है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस रन कर रही हैं, और साथ में छोटे छोटे मोटिव्स हैं, दैट आर द फ्लोरल मोटिव्स। सो फ्लोरल मोटिव्स और लीनियर मोटिव्स का कॉम्बिनेशन होता है, और ज़्यादा ध्यान इसमें पल्लू पे दिया जाता है टू मेक इट लुक मोर एक्सक्लूसिव। The mango motif signifying fertility, growth and marital bliss is a very popular design in the Jamdani sarees. Except then the फ्लावर्स का तो यूज़ होता ही होता है, लेकिन उसके बजाय या उसके अलावा भी जो मोटिव्स यूज़ होते हैं दे आर योर दीज व्हाट डू वी से दी मैंगो मोटिव, जो कि हमारा पेजली डिज़ाइन है, जो हमने डे 1 से किया हुआ है कि जो डिज़ाइंस यूज़ होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन जो है या सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव जो है एक्चुअली वो है हमारा पेजली डिज़ाइन। सो पेजली डिज़ाइन का भी इसमें पर्टिकुलरली यूज़ होता है। दिस वॉज अबाउट योर ढाकाई जामदानी। Moving on, we have the Tanjel Jamdani. Now, these sarees have Jamdani motifs on the Tanjel fabric, hence known as the Tanjel Jamdani. The traditional Tanjel borders had a paddo or a lotus motif, pradeep or a lamp pattern. So, तंजेल जामदानी इज़ बेसिकली, तंजेल एक अलग से अलग ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, जामदानी एक है और तंजेल भी एक पर्टिकुलर वे ऑफ मेकिंग साड़ीज़ है, एक अलग से ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है। बट उसमें जब हम कंबाइन कर देते हैं दोनों टेक्निक्स को टुगेदर, मतलब तंजेल स्टाइल ऑफ मेकिंग अ साड़ीज़, देन उसमें जो जामदानी का एसेंस है उसको ऐड ऑन कर देते हैं। एसेंस मीन्स जो खूबियाँ हैं जामदानी बनाने की, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम कहते हैं तंजेल जामदानी, जिसमें यूज़ जो किया जाता है मोटिव्स जो पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है तंजेल में, एक्चुअली तंजेल साड़ी में वो है पद्दो, विच इज़ योर लोटस मोटिव, लोटस पैटर्न बना हुआ, या प्रदीप इज़ योर लैम्प बने हुए या लोटस बने हुए। तो इसका कॉम्बिनेशन विद दैट जामदानी। सो जामदानी के बेसिकली मोटिव्स क्या हैं? स्ट्रेट लाइंस हैं, फ्लावर्स हैं, पेजलीज हैं, बहुत सारे कलर्स यूज़ करना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है दैट इज़ नोन एज योर तंजेल जामदानी। From the use of a single color on the border, they began to use 2 to 3 colors to give it a मीनाकारी effect. सो बेसिकली बॉर्डर पे पहले एक ही कलर का यूज होता था, बट नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने 2 से 3 कलर्स, 2 से ज़्यादा कलर्स का भी यूज़ करना शुरू कर दिया है, ताकि जो बॉर्डर है उस पर एक मीनाकारी सा इफ़ेक्ट है। सो मीनाकारी, आई जस्ट शेयर राइट नाउ व्हाट इज़ द मीनाकारी इफ़ेक्ट। सो अगर मैं यहाँ लिखूँ, okay, you're not able to see I guess right now because I am not sharing that, just a second. Fine, so if I write here मीनाकारी, so मीनाकारी का इफेक्ट कैसा होता है, मीनाकारी ऑन साड़ीज़ देखते हैं कैसा मीनाकारी वर्क ऑन साड़ीज़। So if you see this particular saree, let it load, it's not loaded, yes. Now if you see this particular saree, zoom it on your screen and see. तो इसमें आपको किस तरीके से दिख रहा है, बीच में कुछ रेडिश वर्क है और उसके आसपास गोल्डन का काम है, और मीनाकारी वर्क होता कैसे है, जस्ट हैव अ लुक देयर ऑल्सो। सो इफ़ यू सी द मीनाकारी वर्क, इट्स समथिंग बेसिकली द सेम, कि बीच में दूसरा कलर है, उसके आसपास दूसरे कलर से बॉर्डर, आई मीन व्हाट डू वी से, बॉर्डर बना दिया है, बॉर्डर कहो या उसकी आउटलाइन बना दी है। सो दैट इज़ मीनाकारी बेसिकली, और इसी तरीके से यूज़ किया जाता है ऑन द फैब्रिक, मतलब साड़ीज़ पे इसी तरीके से यूज़ किया जाता है कि जो मेन मोटिव है
उसको बनाया किसी एक कलर से, ब्राइट से कलर से, और उसको बॉर्डर उसकी आउटलाइन कर दी किसी गोल्डन से या मेटालिक कलर से या किसी भी कलर से, डिपेंडिंग लाइक अगर उस पर्टिकुलर स्टाइल में या उस पर्टिकुलर साड़ी में वो लोग जरी का यूज़ ही नहीं करते हैं, जैसे अभी तक हमने जामदानी में जरी का जिक्र नहीं देखा, देर इज़ नो यूज़ ऑफ जरी। सो इसमें जो वर्क होता होगा मे बी अंदर रेड से बना दिया मोटिव, और उसकी जो आउटलाइन बना दी है, जो थिक आउटलाइन बनाई है या थिन बनाई है डिपेंडिंग, तो उसको दूसरे कलर से बना देते हैं, सो विच गिव्स अ मीनाकारी इफेक्ट। आफ्टर वी हैव द धनाई खली जामदानी, having a tighter weave than any other jamdani, Dhanai Khali Jamdani is hardier. Its bold body colors and contrasting borders and absurdly low prices make them very affordable. So these are little, you know, what we can say is they are little very made with little work, काम कम होता है, टाइट वीव होती है, दे आर टाइटली वोवन, तो ज़्यादा पारदर्शी होने की क्षमता इसके अंदर कम होती है। अगर हम पास पास धागों को रख दें तो डेफिनेटली वो जो आर पार दिखने वाली चीज़ है वो कम हो जाएगी। कैसे कोई भी फैब्रिक आर पार दिख सकता है, क्योंकि वीव पर डिपेंड करता है। अगर हम पास पास स्टिचिंग वीविंग कर देते हैं तो वो पारदर्शी दिखने की उसकी क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, और अगर हम बहुत दूर दूर उसकी वीविंग कर देंगे तो इट सीज लाइक वी कैन सी आउट ऑफ इट, हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो धनाई खाली जामदानी है तुम्हारी, इट इज़ डिफरेंट, इट वी के नॉट सी आर पार, मतलब उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, बिकॉज वो टाइट वोवन होती है, और ये इसमें जो डिज़ाइंस होते हैं वो काफ़ी बोल्ड होते हैं और बड़े होते हैं। बोल्ड एंड बिगर मीन्स कि बड़े बड़े डिज़ाइंस, बोल्ड मीन्स एक्चुअली द बिगर डिज़ाइंस, बड़े बड़े डिज़ाइंस का यूज़ होता है, बोल्ड कलर्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इसमें भी देख लो तुम, रेड है, ऑरेंज है, फिर उसके साथ बीच में ब्लैक से भी बॉर्डर जा रहा है, यू जूम इन यू कैन सी दैट कि ब्लैक से एक बॉर्डर जा रहा है। तो इस तरीके से बोल्ड डिज़ाइंस का यूज़ और कलर्स का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद अगेन देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द जामदानीज। एक एक्स्ट्रा जामदानी है इसमें, फर्स्ट आई रीड दैट इज़ शांतिपुर जामदानी। एज द नेम सेज शांतिपुर जामदानी, तो ये एक जगह है शांतिपुर इन वेस्ट बंगाल जहाँ पर ये जामदानी बनती है। सो इट इज़ सिमिलर टू द तंजेल जामदानी। सिंस तंजेल जामदानी जो है, जो अभी हमने पढ़ी, दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ तंजेल एंड जामदानी, जामदानी की जो खूबियाँ हैं और तंजेल की जो खूबियाँ हैं उसका कॉम्बिनेशन है। उसी तरीके से और तंजेल जामदानी करी जाती है बांग्लादेश में, तंजेल डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में है, वहाँ पर करी जाती है। बट उसी चीज़ का यू कैन से उस चीज़ को इंडिया में भी जो किया इंडिया में भी किया जाता है, वो जगह है शांतिपुर, शांतिपुर में किया जाता है, इसीलिए उस पर्टिकुलर जामदानी को हम शांतिपुर जामदानी कहते हैं। सो इसमें दिया है कि जामदानी साड़ीज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मोटिव्स एंड द ओरिजिन ऑफ दे आर प्रोड्यूस्ड। सो जो मोटिव यूज़ हो रहा है, जो टेक्निक इज़ बेसिकली द सेम, कि उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा वेफ्ट यार्न, जो सप्लीमेंट्री यार्न कह रहे हैं, एक्स्ट्रा वेफ्ट यार्न को यूज़ करके मोटिव्स डेवलप करने हैं। बट अदर देन दैट कि वहाँ ओरिजिन कहाँ हो रहा है पर्टिकुलर साड़ी का, या पर्टिकुलर या ऑफ कोर्स द साड़ी को बनाई कहाँ जा रही है, उस पर डिपेंड करता है कि हम जामदानी को क्लासीफाई कर देते हैं, कहाँ बनाई जा रही है, कौन सा मोटिव यूज़ हो रहा है, इस पे डिपेंड करते हुए वी मेक इट कॉल देम विद डिफरेंट नेम्स। जैसे ढाकाई जामदानी, देन वी हैव तंजेल जामदानी, देन वी हैव शांतिपुर जामदानी एंड धनई खली जामदानी। सो धनई खली जो है वो भी एक पर्टिकुलर जगह है वेस्ट बंगाल में जहाँ पर ओरिजिन होती है, जहाँ बनाई जाती है ये पर्टिकुलर जामदानी। सो उसी तरीके से वी कॉल देयर नेम्स। और दिया है दैट पॉपुलर मोटिव्स इंक्लूड द पन्ना हज़ार। सो पन्ना हज़ार इज़ समथिंग जिसमें बहुत सारे, हज़ार मीन्स थाउजेंड्स ऑफ, और पन्ना मीन्स एमरल्ड्स, तो थाउजेंड्स ऑफ एमरल्ड्स आर स्प्रिंकल्ड ऑन द फैब्रिक। ऐसा लगता है कि छोटे छोटे मोटिव्स
के तौर पे एमरल्ड्स को या पन्ना को बिखेर दिया गया है फैब्रिक के ऊपर, उस तरीके से मोटिव यूज़ किया जाता है। देन वी हैव द कालका। कालका ना पेजली को अब इस टर्म में, जामदानी की टर्म में या वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश के जो टर्म लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में कालका कहा जाता है। सो हमने पेजली को अम्बी कहा, हमने उसको कैरी कहा, हमने उसको आम कहा, अब हम इसको कालका भी कहते हैं। देन वी हैव द बूटीदार। सो बूटीदार इज़ नथिंग बट द फ्लावर्स, छोटे 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 फ्लावर्स जो होते हैं। फूलवार, फूलवार इज़ समथिंग जब फ्लावर्स को हम बंच की तरह, बुके की तरह प्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम फूलवार कह रहे हैं। देन वी हैव, और हियर दे आर सेइंग जस्ट एक रो में, स्ट्रेट रो में अगर हम उसको प्रेजेंट करते हैं या बनाते हैं, जैसे अगर ऐसे करके हॉरिजॉन्टल रो होती है, इस तरीके से फ्रॉम हियर टू हियर एक के बाद एक फूलों को बनाया हुआ है, सो उसको ये फूलवार कह रहे हैं। तिरसा, तो तिरसा इज समथिंग तिरछा, वी कॉल इट तिरछा। सो डायगोनल पैटर्न्स जब बनाए जाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन जामदानी। सो जामदानी में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बनाए जाते हैं, इसके अलावा तिरछा मोटिव्स भी बनाए जाते हैं, मतलब मोटिव्स को अरेंज किया जाता है तिरछी डायरेक्शन में भी। झालर, सो झालर इज़ समथिंग, कोई भी मोटिव का यूज़ पूरे के पूरे फैब्रिक पे एक जाल की तरह किया गया, इट्स जालर, एक्चुअली जाल। तो जाल की तरह पूरे के पूरे फैब्रिक पे किसी भी मोटिव का यूज़ कर दिया जाना, जैसे हम जंगला सोच लें या जाल जैसे होते हैं, बने होते हैं किसी पार्क के बाहर में, तो उस तरीके से जाल का यूज़, या आप देख लो जो आप लोग के डोर्स वगैरह में भी जाल लगे होते हैं, जाल इन द सेंस नेट होती है, नेट भी कहते हैं हम उसको, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मस्कीटोज और समथिंग, तो उस तरीके से पैटर्न को अरेंज किया जाता है और यू कैन से मोटिव्स को अरेंज किया जाता है। दुरिया, ना पोल्का डॉट्स, तो दुरिया इज समथिंग नोन एज पोल्का डॉट्स, मतलब छिड़काव कर देना, डॉट्स डॉट, लाइक कोई भी मोटिव ले लिया, उसको उसको दूर 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 छिड़काव की तरह बना दिया गया इन एट इक्वल डिस्टेंस। ना छिड़काव आप करोगे तो कहीं पर ज़्यादा आ जाएगा, कहीं पर कम आ जाएगा, दैट इज़ डिफरेंट, बट डूरिया इज़ पोल्का डॉट्स की तरह इक्वल डिस्टेंस पे उसको अरेंज कर देना। देन वी हैव द झरोका। सो झरोका, चार कोना, सो चार कोना इज़ द रेक्टेंगुलर मोटिव्स। सो किसी भी मोटिव को एक रेक्टेंगल की शेप में बनाकर उसका यूज़ करना ऑन द फैब्रिक और ऑन द साड़ी इज़ नोन एज द चार कोना। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिव्स थे। सो मोटिव्स था पन्ना हज़ार, कालका, बूटीदर, ये तीन मोटिव्स थे जो यूज़ होते हैं, मीन्स फ्लावर्स, द पेजलीज एंड द एमरल्ड इज़ यूज एज अ मोटिव। और किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है ऑन द फैब्रिक, इट इज़ लाइक इन अ स्ट्रेट रो, लाइक इन अ डायगोनल पैटर्न, और मे बी लाइक एज अ जाल, पूरा का पूरा फैब्रिक पे कवर किया हुआ है, और लाइक अ पोल्का डॉट ऑल्सो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कौन से मोटिव्स और कौन सा पैटर्न। सो जिस तरीके से आप अरेंज कर रहे हो मोटिव को, उसको हम पैटर्न कहते हैं। So moving on, if you see here, this is one of the examples of Jamdani sarees. If you see here, you will find flowers motif. Flower motif ऐसे बिखरे हुए हैं, और where is the flower motif? So this is flower, and they have also arranged in a straight line में arrange किए हुए हैं, तो हम इस वाले को फूलवार भी कह सकते हैं, बिकॉज एक रो में, डेफिनेट रो में फ्लावर्स को अरेंज किया हुआ है। देन वी हैव द कलर्स। अब कलर्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं फॉर जामदानी। द वाप एज अ रूल इज अनब्लीच्ड ग्रे yarn. Motifs are woven in bleached white yarn, colored yarn और a gold और a silver yarn. सो बेसिकली कलर्स का यूज़ होता है, या तो ग्रे यार्न का यूज़ हो रहा है, या तो ब्लीच किए हुए यार्न, ब्लीच कर दोगे तो वाइट हो जाएगा, पूरा वाइट कलर का यार्न यूज़ हो रहा है, या किसी भी कलर के यूज़ हो सकता है। इवन गोल्डन एंड सिल्वर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग द साड़ीज। बट यार्न वी आर नॉट यूजिंग जरी, हम जरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें। अगेन यहाँ पर इन्होंने मोटिव्स का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, दैट विच ऑल मोटिव्स दे यूज़। सो द मोटिव्स जो फ्लावर्स में यूज़ होते हैं वो होते हैं चमेली, गेंदा, मोगरा, जूही एंड हार श्रृंगार। सो दीज आर द डिफरेंट मोटिव्स जो फ्लावर मोटिव्स जिनका यूज़ होता है।
फिर उसके बाद हमारे पास है बूटीदार। ना तिरछा मीन्स डायगनली प्लेस करना किसी चीज़ को। झालर, रेगुलर नेटवर्क ऑफ मोटिव्स विच इज़ योर जाल बना देना पूरा। कॉर्नर मोटिव विच इज़ अ रेक्टेंगुलर वन, जो हमने लास्ट वाला इधर बना हुआ था चौकोर, द 4 साइड्स बना नहीं हुआ था, डिस्क्राइब किया हुआ था इन्होंने। चार कोना जिसका नाम दिया था रेक्टेंगुलर मोटिव, सो दैट इज नोन एज also known as the 4 corner motifs, ठीक है। देन वी हैव पन्ना हज़ार। सो पन्ना हज़ारा इज़ दैट ओनली कि पन्ना को एमरल्ड की शेप को, जैसे कि एमरल्ड की शेप तुमको यहाँ पे दिख सकती है। सो इफ वी बिलीव दैट दिस इज़ एमरल्ड शेप ओनली, ये एमरल्ड की शेप को बिखेर दिया गया इन अ स्ट्रेट रे, सो दिस इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड। एंड देन अगेन देर इज़ पिक्चर्स। अब आपके पास पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख सकते हो डिफरेंट जामदानी मोटिव्स। तो अगर देखो पीकॉक का भी यूज़ है जामदानी मोटिव में, बट बेसिकली यू विल फाइंड द बेसिक मोटिव्स जो यूज़ होते हैं इन जामदानी फैब्रिक, दे आर द फ्लावर्स, द पेजलीज एंड व्हाट एल्स, द पन्ना हज़ार। इसके अलावा जो मोटिव्स यूज हो रहे हैं वो इन्होंने एक पीकॉक बनाया हुआ है। सो पीकॉक इज़ ऑल्सो समटाइम्स यूज। एंड इवन तंजेल जामदानी में they also use what was the yes the lotus, they also use lotus because तंजेल साड़ीज़ में लोटस का यूज़ होता है, तो उसमें भी तंजेल जामदानी में भी आपको लोटस देखने को मिलेगा। कॉमन मोटिव्स इन द जामदानी साड़ीज़ आर द कमल एंड द फ्लावर। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल कि उसमें देखो दीज आर डिफरेंट प्लेसेस जहाँ से ये सारे व्हाट डू वी से नोट्स बने हुए हैं। तो इन्होंने हर बार अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बट जैसे कि पहले इन्होंने लोटस और कमल जो है लोटस को एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट मोटिव नहीं कहा, बट येस तंजेल जामदानी में डेफिनेटली यूज़ होता है दिस लोटस मोटिव। बट ओवर हियर ये बता रहे हैं कि कमल का जो फूल है उसको एज अ मेन बेसिक मोटिव का यूज़ किया जाता है। सो व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द मोटिव्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रायोरिटी बेसिस पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। किस तरीके से? स्टार्टिंग फ्रॉम योर फ्लावर है, फिर आपका पेजली है, फिर आपका है पन्ना हज़ार, एंड देन यू कैन से कि येस इसमें लोटस मोटिव और तोता मैना। सो तोता मैना लिखा हुआ है ना, पैरेट एंड द मैना इज ऑल्सो यूज्ड इन हियर। पीज एंड बर्ड्स, ना पीज एंड बर्ड्स आर द उनका नाम लिखा हुआ है हमर परिंदा। सो ये एक पर्टिकुलर बर्ड है, एक स्पीशी है बर्ड की, उसका भी यूज़ होता है या उनको भी ड्रॉ किया जाता है इन द जामदानी एज जामदानी मोटिव। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सी दिस लार्ज फ्लावर। सो इस पर्टिकुलर लास्ट वाली जो पिक्चर है इफ यू सी, इसमें एक पेड़ बीच में खड़ा हुआ है और उसके आसपास छोटे छोटे एनिमल्स की तरह लोग एनिमल्स बिखरे हुए हैं। सो इफ देर इज़ वन लार्ज फ्लावर और एनी अदर मोटिव देन इट इज़ कॉल्ड अ तोरादर। सो दिस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ पुटिंग वन मोटिव ओवर द होल थिंग, मतलब पूरे पल्लू पे एक बड़ा सा मोटिव लगा देना, उसको कहते हैं तोरादर। ठीक है। इफ़ देर दीज डिज़ाइंस कवर द एंटायर फील्ड ऑफ द साड़ी, इट इज़ कॉल्ड द झालर नक्शा और झालर और जाल। सो एज दिस इज़ ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि पूरे फैब्रिक पे बिखेर देना मोटिव्स को, दैट इज़ नोन एज जाल वाला इफेक्ट बना देना, जाल बना देना। इफ़ यू सी दिस वन, जाल जैसा इफेक्ट इसमें बना हुआ है, ये ग्रीन जैसी जो फैब्रिक है साड़ी है उसमें बना हुआ। देन इट इज़ इफ़ इट इज़ विद रोज ऑफ फ्लावर्स इट इज़ कॉल्ड द जामदानी। सो अगर रोज ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलवार जिसे हम कह रहे थे, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं छोटे छोटे मोटिव्स या फ्लावर्स, उसको हम फूलवार कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ इट इज़ नोन एज फूलवार जामदानी। Most prized among all the motifs is the पन्ना हज़ार और the 1000 emeralds. So if you see this, इसमें क्या है, छोटे छोटे मोटिव्स को बिखेरा हुआ है in the shape of hexagon.
सो एमरल्ड्स जो हैं वो हेक्सागन की शेप में प्रेजेंट किए जाते हैं और उसी तरीके से उनको बिखेर दिया जाता है ऑन द साड़ी। तो उस दैट इज़ ऑल्सो यू नीड टू कंसिडर कि वो सबसे एक्सपेंसिव मिलता है जो ये पर्टिकुलर साड़ी होती है। Now we are coming to the decline and its fall, the fall of this particular Jamdani and its decline, वो कैसे ख़त्म होती है। Any problem, any doubt till what I have explained? No. Okay. So from the middle of the 19th century, there was a gradual decline in the Jamdani industry. A number of factors contributed to this decline. The subsequent import of the lower quality but cheaper yarn from the Europe started the decline. Most importantly, the decline of the Mughal power in India deprived the producers of Jamdani to their most influential patrons. Villagers from the Madhurpur and the Jangalbari, both in the Kishorganj district, once famous for the Jamdani industry, went into the gradual oblivion. So basically इसमें decline वही 19वीं सदी जब ब्रिटिशर्स they started to rule us, उन्होंने ब्रिटिशर्स का शासक शुरू हो गया था। उसी टाइम पे सबसे पहले भी जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे जामदानी की, उसमें भी यही मेंशन था कि स्टार्टिंग में तो दे यूज टू एक्सपोर्टेड टू देयर प्लेस, मतलब ब्रिटेन में ही एक्सपोर्ट किया जाता था। जामदानी वो बनवाते थे और एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि मसलिन इज़ अ वेरी फाइन क्वालिटी फैब्रिक। उसकी जो क्वालिटी होती है यूजेबल एवरीडे यूज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए पहले तो ठीक है उनको समझ में आया, वो एक्सपोर्ट करने लग गए इंडिया से वहाँ पर, यहाँ माने इंपोर्ट करने लगे अपने देश में। ठीक है। सो अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं विच मीन्स वो उस देश के हैं और वो बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं, तो उसको इंपोर्टिंग कहते हैं। एक्सपोर्ट करना मतलब वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से बाहर भेजना। जैसे हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर कुछ भी बन रहा है और वो बाहर जा रहा है, दैट इज़ नोन एज योर एक्सपोर्टिंग। So right here is that they started to export all the stuff from here to their place. फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मुगल्स का डेक्लाइन हो गया, तो जामदानी वीवर्स जो थे या जामदानी का जो कंस्ट्रक्शन था वो काफ़ी डिप्राइव हो गया, और यूरोपियंस आल्सो स्टार्टेड कि वो अपना लोअर क्वालिटी का जो यान है वो इंडिया में लाने लग गए, इंडिया में एक्सपोर्ट करने लग गए बाहर से, इंपोर्ट करने लग गए बाहर से। सो लाइक बाहर से इन द सेंस अपने यूरोपियन स्टेट्स से। दैट चीपर यार्न्स आर द पोलिएस्टर्स, नायलॉन्स। उस टाइम पे वी जस्ट जनरली कॉल इट कि पॉलिएस्टर को ही बाहर से जो ब्लेंड्स होते थे, मतलब प्योर कॉटन या सिल्क नहीं होते थे, ब्लेंडेड यार्न्स होते थे, तो इनका यूज़ होने लगा धीरे धीरे। एंड उसी तरीके से जो वीवर्स थे दे वेंट इनटू द डिक्लाइन। फाइन। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ करंट प्रॉब्लम्स। आज की क्या दिक्कत है इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर साड़ीज़ के लिए। अकॉर्डिंग टू अ नेशनल डेली, अ सीनियर तांती और अ उस्ताद अर्न्स अबाउट 2500 to 3000 per month. So now what is this TK? Let me see this. Just a second. What is TK? Okay, country code, local domain, territory of, okay, in money. सो इट्स अ बांग्लादेशी करेंसी, बांग्लादेशी टाका को हम टीके लिखते हैं। सो बेसिकली जो एक वीवर है आज जो कमाता है वो है 2500 ढाका मनी से लेकर या टाका से लेकर 3000 टाका तक पर मंथ, इससे ज़्यादा नहीं कमाता है। एंड जूनियर वीवर्स गेट मच लेस विच इज़ 1600 टाका, दैट्स इट।
एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द वीवर्स, सो दिस ये जो लिखा है इनके ये जो एग्जैप्शंस कह सकते हो, या जो इनके पास वो बना हुआ है, एक डेटा कलेक्ट हुआ है, वो एक उस्ताद से, उस्ताद मीन्स अ पर्सन हु इज़ मेकिंग साड़ी मीन्स द वीवर, उनसे बात करके, उनके साथ इंटरव्यू या उनसे बातचीत करके इनको ये सब पता चला है. As a result, many weavers do not want their children to come to this profession, preferring to the other lucrative garments industry. So basically इस वजह से, क्योंकि जो अर्निंग है वो बहुत कम है इन मेकिंग जामदानी, इसी वजह से जो वीवर्स हैं वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी इसी काम में आएँ. The government and the other organizations are trying to revive the old glory of Dhakai Jamdani in a bid to avoid the middlemen. They are trying to establish the direct contact with the weavers. A Jamdani Palli has been established near the Dhaka. Jamdani, one of the oldest forms of cottage industry in Bangladesh, was one a dying trade. Organizations like the Radiant Institute of Design, Shanto Mariam University of Creative Technology, National Institute of Design and others are helping designers create new Jamdani designs. So basically इसमें बता रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ख़त्म होता जा रहा है. टू कीप इट सर्वाइव, टू मेक इट सर्वाइव, मतलब कि रहे, ख़त्म ना हो जाए एकदम से, उसके लिए जो हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं या गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़, सॉरी नॉट इंडस्ट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर ट्राइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क, जैसे कि उनके लिए काम करना. तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे NID जो हमारे इंडिया में ही है इंस्टीट्यूट. NID ये लोग क्या करते हैं, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रोजेक्ट्स असाइन करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज़ डूइंग समथिंग इन टेक्सटाइल और समबडी वांट्स टू वर्क विद टेक्सटाइल, फैब्रिक के साथ वर्क करना चाहता है, तो इस तरीके से उनको कंपेल किया जाता है. यू गो एंड हैव सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप विद द वीवर्स rather than going and doing internship in an industry. ये कहते हैं कि do the internship with the weavers, that will help you better. तो उस तरीके से NID भी है, और भी 2 इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, दैट इज़ रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड शांतो मरियम यूनिवर्सिटी. वो भी हेल्प करते हैं कि जामदानी का जो काम है वो ख़त्म ना हो जाए, और उसमें सिंस वो धीरे धीरे नए इन्वायरमेंट के साथ, नए फैशन के साथ भी चलता जाए, इसीलिए दे एनकरेज द डिज़ाइनर्स कि वो वहाँ जाके जामदानी में नए डिज़ाइंस ऐड ऑन कराएं. ठीक है. सो दिस हैपन्स विद द ब्रोकेड्स ऑल्सो. सो ब्रोकेड्स में भी ऐसी हैं कुछ संस्था हैं बनारस में. हिज नेम इज़ रजनीकांत. ही इज़ अ पर्सन, ही हैज़ हिज ओन वर्क. तो उनके अंडर में जितना भी जितने भी बनारस में अलग अलग ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं या ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, एनीथिंग, देयर आर 9 GIs. जो GI हमने किया था ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, तो बनारस को 9 GI मिले हुए हैं. तो उन 9 को ध्यान में रखकर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, और वो हेल्प करते हैं कि व्हाट डू वी से, कि वो एनकरेज करते हैं वीवर्स को कि वो और काम करें. वो उन्होंने अपने अंडर में उनको रख लिया है, अपने अंडर में उन्होंने एक छोटी सी इंडस्ट्री टाइप का ओपन करा हुआ है, सो दैट वो वहाँ जाके देखें, और वहाँ जाके देखें, नॉट देखें बट वहाँ जाके काम करें, और वो अपनी तरफ से उनका सामान बिकवाएंगे. सिंस दे आर नॉट एबल टू सेल इट ड्यू टू द मिडलमैन. मिडलमैन मीन्स कि वीवर्स ने बनाया, जो रिटेलर्स हैं उसने नहीं ख़रीदा, बट होलसेलर्स ने ख़रीदा, फिर होलसेलर्स के से रिटेलर्स ने ख़रीदा, तो उससे क्या हो जाता है, वीवर को बहुत कम अमाउंट मिलता है. तो जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि जो ये मिडलमैन का झंझट है बीच में वो ख़त्म हो जाए, और डायरेक्टली जो कंपनी को चाहिए मटेरियल, होलसेलर को हटा के रिटेलर डायरेक्टली कनेक्ट करे अपने आप को इस वीवर से. सो दे आर ट्राइंग टू डू दैट वे, work that way. So that's it about your Jamdani. Any problem, any discussion you want to make related to all this?